This is our second video on the chapter solution. Before that, we have discussed types of solution and units of concentration used for describing concentration of solution. In that, we have already studied molality, normality, even parts per million, mole fraction, and to recapitulate things, mole fraction is very important term, and we have studied that sum of mole fraction of all components in the solution is equal to 1. For binary solution, if there are two components, of course in binary solution there will be two components, so the mole fraction representation will be represented as xa plus xb is equal to 1. In actual, it is not xa, it is chi a Greek letter chi a. But to make things simpler, I'm just pronouncing xa and xb. So xa plus xb is equal to 1. That means if you are knowing value of any one of the component, mole fraction of the component, you will be able to know mole fraction of the other component very easily. Suppose mole fraction of one component, either solute or solvent. Of course, solvent is 0.8. Then the mole fraction of solute will be 0.2. Similarly, if the mole fraction of solute is 0.4, then mole fraction of solvent will be 0.6. So that is all about mole fraction. Let us move to our next topic of this video, that is solubility of gas. We do know gases are soluble in water. If you just think that how aquatic life exists, then it is quite clear from this sentence that aquatic life like fish used to inhale oxygen through their gills, and they inhale oxygen that is present in the water, that means in the dissolved form. Similarly, aquatic plants, they take carbon dioxide from water which is already present in the water in the dissolved form. That means gases are soluble in gases gases are soluble in where? Gases are soluble in water. If we will move to the next content, that is solubility of gases in a liquid depends on which factors. So these factors are nature of the gas. Some gases are very soluble and some are less soluble. Temperature of the system, you know very well, if you increase the temperature of the system, the kinetic molecular energy of the gases will increase, and the bond between solvent and solute will become weaker and they will expel out. So solubility will decrease, that we will study later on as well in the next slide. And effect of pressure also. So if in this topic, actually effect of pressure will be discussed in a broad way as compared to these two things, but we will take these two things as well. So in our next topic, just not topic, if we'll elaborate these three things, then it is the very first topic is nature of the gas and the liquid. So we know very well that gases dissolved in water. Of course, that gases are soluble in liquids. But if you will take two categories of the gases like hydrogen, oxygen, and nitrogen, they dissolve quickly in water as compared to gases like carbon dioxide, HCl, and NH3. That means nitrogen, oxygen, and hydrogen, they are very much soluble in water, but but not very much soluble. I'm sorry, they are less soluble in water. But carbon dioxide, HCl, ammonia, these are more soluble in water as compared to these three gases. These are less soluble in water. Okay, so that is why, because they are less soluble, because there is a less affinity between the solute and solvent. If the bond is weaker, then they are less soluble. If bond is stronger, then gases will be more soluble. So moving to the next topic, that effect of temperature. What is the effect of temperature on the solubility of the gas? So actually, the solubility of gas or anything, dissolution of anything, even solid in the liquid, is exothermic process. So if you'll say, if you'll go through this, I mean to say thing, not always. In case of solid, it is endothermic, but gases, the solubility of gases in liquid is exothermic, specifically gases. So if you will take gas in a which is soluble in liquid, then you will you can easily see heat is coming out from this reaction.
and if this is equilibrium is in equilibrium, then on increasing temperature according to Lee-Chatelier principle, the reaction will go backward side, because if you increase temperature, then system will try to minimize it, and for that they will that system will try to take extra amount of heat, and the extra amount of heat will be taken by product, and eventually what this reactant will be formed in the form of gas and solution. That means dissolution process will be sustained over solution, और यहाँ पे gases जो होंगी वो expel out हो जाएंगी. अब हम जो आज का सबसे important topic है, effect of pressure. प्रेशर का solubility पे क्या असर पड़ता है. आपको मैंने एक बार बताया था कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है. मैं एक बार फिर से बता दूं पार्शियल प्रेशर क्या होता है. किसी कंटेनर में अगर A, B, C, D गैसेस रखी हुई हैं, तो उसमें अगर A का प्रेशर PA है, B का प्रेशर PB है, C का प्रेशर PC है और D का प्रेशर PD है, तो टोटल प्रेशर आपका PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD हो जाएगा. लेकिन सारी गैस को निकाल करके A वाली गैस उतनी ही रख दी जाए जितनी पहले ली गई थी, तो वो जो उस कंटेनर में प्रेशर लगाएगी वो उसका पार्शियल प्रेशर होगा. इस गैस को निकाल के अब B वाली गैस उसमें रख दी जाए जो पहले कंटेनर में रखी गई थी, और उतनी ही गैस जितनी पहले रखी गई थी, बढ़ाकर नहीं, तो वो जितना प्रेशर उस कंटेनर में लगाएगी वो उसका पार्शियल प्रेशर होगा. सो पार्शियल प्रेशर इज वेरी मच क्लियर टू यू, वी हैव ऑलरेडी टेकन इन क्लास 11th. तो ये यहाँ ये कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस. इन दो फिगर्स में आप देख रहे हो, ये पिस्टन वाला सिलेंडर है, ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, ये मूवेबल पिस्टन है. यहाँ पर कोई गैस है और ये जो है वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं. थोड़ी देर बाद क्या होता है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाते हैं, इवेपोरेट हो सकते हैं, ऑफ कोर्स इवेपोरेट हो सकते हैं. इवेपोरेशन इज ऑनगोइंग प्रोसेस. तो ये इवेपोरेट हो रहे हैं और इसी वक्त ये गैसेस भी हैं, ये गैसेस के मॉलिक्यूल ऊपर हैं. अगर आप प्रेशर कंप्रेस इसको इस पिस्टन को कंप्रेस करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे, तो जो गैस के मॉलिक्यूल जो डिसॉल्व नहीं थे वो भी आप देख रहे हैं कि इसमें डिसॉल्व हो गए. यानी आप जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा ये डिसॉल्व हो जाएंगे. अब जितना ज्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे उतना इस सॉल्यूशन में इन मॉलिक्यूल्स का मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऊपर नहीं होता है. मोल फ्रैक्शन जो अनडिसॉल्व में नहीं होता, मोल फ्रैक्शन हमेशा सॉल्यूशन में पड़े हुए कंपोनेंट का होता है. तो कंपोनेंट में पड़े हुए ये जो गैसेस डिसॉल्व्ड हैं, इनका मोल फ्रैक्शन बढ़ गया. कब? जब आपने प्रेशर बढ़ा दिया. इसका मतलब जब आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, या आप कह सकते हो कि जब मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो भी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है. तो दोनों ही तरीके से कही जा सकती है कि मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. अगर ज्यादा मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में ऑलरेडी उस गैस के, तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है. ऐसे भी आप कह सकते हैं कि अगर पार्शियल प्रेशर उस पर्टिकुलर गैस का इंक्रीज कर दिया जाए तो भी देखिए सॉल्युबिलिटी बढ़ गई. तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, and solubility is also directly proportional to the partial pressure of the gas. This is the gas present over here will exert pressure on the liquid, and the solubility also depends on the partial pressure of the gas. This can be easily achieved by going through this animation. I'm going to play this animation. In animation, it is very much clear that system is having piston, movable piston, and the lower part of the solution and upper part of the system is represented by the these are the solvent and these are the solute molecules. Some gases are already dissolved in the solvent, and some solvent molecules are just going above the liquid because of evaporation. But once you will apply pressure on the piston, so you just see that now only few molecules of the gas are remain on the top of the surface of the liquid. That means solubility of the gas increased as you increase pressure. That means solubility depends on partial pressure of the gas. That means solubility is directly proportional to the partial pressure of the gas. Or you can say solubility is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. जितना ज़्यादा mole fraction होगा solution में, उतनी ही ज़्यादा उसकी solubility होगी. इसी बात को, बिल्कुल इसी बात को जो हमने अभी अभी कही, वो हेनरी साहब ने अपने लॉ में कहा. एग्जाम में कभी कभी हेनरी लॉ आता है. हेनरी लॉ ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर, आपने कहा जो पार्शियल प्रेशर है वो भी सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करता है, या सॉल्युबिलिटी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस पर डिपेंड करती है. अच्छी बात है. और सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस पर भी डिपेंड करती है. इसका मतलब पार्शियल प्रेशर भी मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा.
जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऊपर से होगा उतना ज्यादा गैस डिसॉल्व होकर उसके मोल फ्रैक्शन उसका सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा। सो इन्होंने कहा पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट गैस, यानी P is directly proportional to X, यानी partial pressure of the gas is directly proportional to the mole fraction of the gas present in the solution। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक KH कांस्टेंट आएगा, इस KH को हेनरी कांस्टेंट कहा जाता है। अगर इस इक्वेशन को आप y इज इक्वल टू mx से समझने की कोशिश करें, अगर इस इक्वेशन को आप y इज इक्वल टू mx से समझने की कोशिश करें तो आपको ये समझ में आएगा, आप क्लियरली इस बात को देख सकते हो। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि y इज इक्वल टू एम एक्स, इसको y इज इक्वल टू एम एक्स से समझने की कोशिश करिए अगर आप, तो आप ये समझ रहे हो कि c का टर्म इसमें है ही नहीं, c का टर्म है ही नहीं। अगर c का टर्म नहीं होता है तो वो लाइन कहां से जाती है, वो लाइन ओरिजिन से जाती है। तो y और x यानी प्रेशर और x के बीच में, पार्शियल प्रेशर और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, आप प्लॉट करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। दिस इज द ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ओबेइंग हेनरी लॉ। तो कोई आपसे पूछे हेनरी लॉ क्या होता है तो आप कहोगे अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ the mole fraction of the gas present in the solution, the mole fraction of the gas present in the solution is directly proportional to the partial pressure of the gas above the solution। जितना उस solution के ऊपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर रहेगा उतनी ही ज्यादा उस गैस का कंटेंट उस solution में रहेगा। So that is all about Henry law। Next topic is very important, we will study application of Henry law। हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस क्या हैं? तो आपने अक्सर कार्बोनेटेड ब्रेवरेजेस खोले होंगे, जब आप कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स आप खोलते हो तो देखते हो कि एक फिजिंग साउंड के साथ एक गैस बाहर आती है, वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कई लोग पूछते हैं कि सर वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों डाली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड डालने के पीछे किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक में जो पर्पस है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पड़े हुए वाटर के साथ मिल करके कार्बोनिक एसिड बना देती है, एंड दिस कार्बोनिक एसिड पुट अ टेस्ट इन योर माउथ। एक्चुअली जो ये जो टेस्ट आता है कार्बोनिक एसिड का, जो आप सोडा पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो वो कार्बोनिक एसिड का जो टेस्ट आता है वो जो होता है वो उस पर्टिकुलर सॉफ्ट ड्रिंक को एक टेस्टियर फ्लेवर देता है। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड ना डाली जाए तो वो आपको फ्लैट ड्रिंक जैसी लगेगी, एकदम फ्लैट जैसी लगेगी। इसीलिए ये कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड डाली जा सकती है। अगर आप उसी की तरह से ऑक्सीजन डाल दें उसमें, तो ऑक्सीजन डालेंगे तो वो पूरी की पूरी स्पॉइल हो जाएगा, आपका ड्रिंक ही स्पॉइल हो जाएगा, उसमें टेस्टलेस हो जाएगी, इवन वो उसमें से स्मेल आने लगेगी। तो इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं उसमें जितने भी बेवरेजेस होते हैं। तो आपको पता है कि क्या इसका यूज है, हेनरी लॉ का यही यूज है कि हम टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हम उसको उसका प्रेशर बढ़ा करके कार्बन डाइऑक्साइड का उसमें डिसॉल्व कराते हैं ताकि वो घुल करके उसमें कार्बोनिक एसिड बना के रखे। और जब तक आप जब इसको आप ओपनर से खोले तो थोड़ी देर तक वो कार्बोनिक एसिड रहे। आप बहुत देर बाद उसी को पिएंगे या गर्म होने के बाद पिएंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल हो जाएगी तो आपने देखा है कि फिर वो मजा नहीं रह जाता। अगर आप फिर से उस बॉटल को खुली हुई बॉटल को ठंडी करेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो डिसॉल्व हो नहीं जाएगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो एक्सपेल हो गई, तो आपको वो टेस्ट नहीं आएगा जो बंद बॉटल में आएगा। इसीलिए एक बार कोल्ड ड्रिंक कहते हैं कि एक बार कोल्ड ड्रिंक खुल जाए तो उसको उसी वक्त पी लेनी चाहिए। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक्सपेल हो जाती है और फिर आपको वो कार्बोनिक एसिड का टेस्ट नहीं मिलता है, फ्लेवर नहीं मिलता है। सो जस्ट आप हमारा ये एप्लीकेशन के बाद हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है इन डीप सी डाइविंग। हमने स्कूबा डाइवर्स के लिए देखा है, ये स्कूबा डाइवर्स पीछे सिलेंडर लगा के, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के जाते हैं और उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है। वो जो लेके जाते हैं प्रॉब्लम क्या होती है उनके साथ, उनके जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसके साथ हम क्या चेंजेस करते हैं। हम सोचते हैं कि उसमें कंप्रेस्ड एयर भर दी गई है, जो स्कूबा डीप सी ड्राइविंग में जाते हैं, और उसमें होता यह है कि अगर कंप्रेस्ड एयर भर दी जाए उन सिलेंडर्स में तो आपको पता है एयर कंटेन्स 78% नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है साहब। दैट मीन्स the nitrogen dissolve more considerably as compared to oxygen। अगर ज्यादा ये soluble है तो जब ये आप इनहेल कर, जो ड्राइवर है वो इनहेल करता है तो नाइट्रोजन जो रहती है वो तो डिसॉल्व हो जाती है ब्लड में, जब ऑक्सीजन आप मेटाबॉलिज्म में वो डिसॉल्व हो जाती है, और जब वो बाहर आता है तो ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाती है, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है लंग्स के से, लेकिन जो नाइट्रोजन डिसॉल्व हुई है वो बबल्स के रूप में वहां से बबल
के रूप में वहां से फॉर्म हो जाती है, और फिर वहां पे उसको, उस डिजीज को हम कहते हैं बेंड्स कहते हैं, और वो फिर एक सिकनेस जिसको डिकम्प्रेशन सिकनेस भी कहा जाता है वो ला देता है। तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, ऐसा ना हो इसलिए नाइट्रोजन गैस जो कि बहुत सॉल्युबल है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं हीलियम से उस ऑक्सीजन सिलेंडर में, जो सिलेंडर जाता है। तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर में केवल और केवल 2% ऑक्सीजन रहती है और 98% हीलियम रहती है। लेकिन जो हीलियम है, इट इज वेरी मच सॉल्युबल इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, जैसे हमारा ब्लड है उसमें सॉल्युबल होती ही नहीं है। तो ऑक्सीजन सॉल्युबल होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, और फिर टिश्यूज में जाके अलग हो जाता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कराता है। ऐसा कंसंट्रेशन रखने से ऑक्सीजन को बिल्कुल वही प्रेशर मिलता है जितना बाहर हमको 1 एटमॉस्फेयर में मिलता है। तो आपको समझ में आ गया कि डीप सी डाइविंग में जो सिलेंडर लेके जाते हैं स्कूबा डाइवर्स, उसमें कंप्रेस्ड एयर नहीं रहती, एयर रहती है मतलब नॉर्मल एयर नहीं रहती, दैट नाइट्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हीलियम, 98% हीलियम। सो दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आगे हम बात करें इन द फंक्शन ऑफ लंग, लंग्स में क्या होता है। तो लंग्स में क्या होता है, लंग्स की कहानी है कि हमने एयर इनहेल की, अच्छी बात है, ऑक्सीजन कंबाइन कर गया हीमोग्लोबिन से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना गया। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बनाया उसने तो ठीक है, लेकिन जब वो टिश्यूज में पहुंचा तो वहां पे ऑक्सीजन का स्पेसिफिकली पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो वो वहां पे उसको छोड़ देता है, किसको, टिश्यूज में ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, और वहां पे फिर वो फंक्शंस ऑफ सेल कराता है। तो यहाँ पे ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब बात आती है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड। आपको पता है सॉल्यूशन हमारे 9 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमारा वो वाला सॉल्यूशन सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेट करता है जहां पर सॉल्यूट जो है वो सॉलिड हो। अगर सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को ही हम बेसिकली हमारे दिमाग में आता है। और हम क्लास 9 से पढ़ चुके हैं सॉलिबिलिटी क्या होती है, इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या सॉलिबिलिटी किन किन चीजों पे इफेक्ट करती है। अब सॉलिबिलिटी हम गैसेस की नहीं पढ़ रहे हैं लिक्विड में, अब पढ़ रहे हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो जो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है वो पढ़ेंगे, और सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। जो सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि at particular temperature the maximum amount of solute in grams which can be dissolved in 100 gram of solvent to form the saturated solution at the particular temperature is called its solubility। कोई किसी की solubility किसी solution की निकालनी है आपको, किसी solvent की इसकी solubility कितनी है, तो आप वो solute, आप पहली बात तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखिए, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही solubility निकाली जा सकती है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 100 ग्राम का सॉल्वेंट ले लीजिए, सॉल्वेंट फिक्स है 100 ग्राम। अब उस 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितनी भी सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व हो जाए उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी होगी। अब सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, और प्रेशर पे डिपेंड करेगी। मैं फिर बता दूं, हमारा जो सॉल्युबिलिटी है वो गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड खत्म हो चुका है, हम अब पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सो अगर आप पढ़ते हो कि नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, तो हम खूब अच्छे से जानते हैं कि पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व होते हैं पोलर में, और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट सॉल्यूट होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। जैसे NaCl पोलर है, वाटर में डिसॉल्व होगा क्योंकि वाटर भी पोलर है, लेकिन बेंजीन को डिसॉल्व करना है तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि बेंजीन जो है नॉन पोलर है, और वो नॉन पोलर कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व होगा। तो ये बातें क्लियर होनी चाहिए, यानी कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि कौन किस में डिसॉल्व होगा। अब आप बात करते हो टेम्परेचर की। अभी आपने जब गैस का सॉल्युबिलिटी देखी थी लिक्विड के साथ, तो आपने कहा था वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन जब सॉलिड डिसॉल्व होता है सॉल्यूट के रूप में किसी सॉल्वेंट में, लिक्विड में, तो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है। आपने देखा हीट यहां आ गया, पहले हीट यहां था जब गैस डिसॉल्व हो रही थी लिक्विड में, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कुछ ऐसे सॉल्यूट हैं जिसके लिए एंडोथर्मिक है और बहुत कम, थोड़े से मुट्ठी भर ऐसे हैं जिसमें एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, जैसे कि आपने देखा सीजियम सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट में ये सॉल्युबिलिटी की प्रोसेस, ये डिसोल्यूशन की प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी होती है, लेकिन नेचुरली जनरली ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो प्रोसेस फॉलो होगी जिसमें टेम्परेचर खाया जाए, तो टेम्परेचर फॉरवर्ड डायरेक्शन में खाया जा रहा है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन इन पर्टिकुलर तीन, अगर हम ये ऐसे एग्जांपल्स ले लें तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो इन जनरल वी कैन से ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज प्रेशर। क्या प्रेशर सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है? जी नहीं। अगर सॉल्यूट पार्टिकल सॉलिड हो, सॉल्यूट पार्टिकल सॉलिड हो, तो
ऊपर का प्रेशर बिल्कुल उसको इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये गैस नहीं है जिसको आप कंप्रेस कर करके डिसॉल्व करा दोगे। तो यहाँ पे इट डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, आई एम सॉरी, solubility of liquid in a liquid. It is so because solid and liquids are highly incompressible and practically remain unaffected by change in pressure. So moving to the our next topic, that is vapor pressure. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है vapor pressure, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एकदम कान खोल लीजिए कि वेपर प्रेशर क्या है, जरा पढ़ें, जरा समझें वेपर प्रेशर, क्योंकि अभी वेपर प्रेशर कई बार चिल्लाया जाएगा और तब समझ में आया कि अरे हमें तो वेपर प्रेशर ही नहीं समझ में आया था। वेपर प्रेशर कोई बहुत बड़ा अफलातून भी नहीं है, अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो वेपर प्रेशर समझ में आ जाएगा। आप एक कटोरी पानी लीजिए, अच्छी बात है, वो पानी, जो पानी के मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट तो हो रहे हैं, वो इवेपोरेट हो रहे हैं। अगर आप टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेट ऑफ इवेपोरेशन है, तो जितना उस सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर जितना वो प्रेशर एक्सर्ट करता है लिक्विड, वो उसका वेपर प्रेशर होता है। लेकिन कब? इक्विलिब्रियम में। सर इक्विलिब्रियम में जरा समझाइए कैसे, जरा आप इस बात को समझाइए कि इक्विलिब्रियम में कितना कैसे एक्सर्ट करेगा। मैं इस बात को समझाता हूँ और किन पे डिपेंड करता है उनकी भी हम चर्चा एक एक करके करेंगे। मान लीजिए मैं ये एक डायग्राम ले रहा हूं जिसको मैं एनिमेशन से समझाने जा रहा हूं आपको। मैं वेपर प्रेशर समझाता हूं कि वेपर प्रेशर होता क्या है। आपको ये डायग्राम समझिए और ये बंद कंटेनर देखिए, एकदम बंद है। इसका मतलब कोई भी चीज बाहर निकलने के लिए इसको मनाही है, अच्छी बात है। अब यहाँ के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं। अब इवेपोरेट हो रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो कंडेंस भी हो रहे हैं। हम इस बात को थोड़ा एनिमेशन से समझने की कोशिश करें, एनिमेशन से समझने की कोशिश करें। आपने ये बड़ा सा बंद कंटेनर लिया, इसमें लिक्विड रखा हुआ है, यानी कि यहां से मॉलिक्यूल्स एस्केप नहीं कर सकते अगर ये वेपर फेज में आ गए, गैसेस फेज में आ गए तो भी। आप ये देखिए, ये मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के ये जो है वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। जब इनको आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, सबसे पहले तो ये यहाँ से निकल के सरफेस पे आएंगे और जिनकी एनर्जी थोड़ी और ज्यादा होगी वो सरफेस को की सतह को लीव करते हुए यहाँ पे आ जाएंगे। अगर ये यहाँ पे आ जाते हैं तो थोड़ी देर बाद ऐसा होगा, थोड़ी ही देर बाद ये कंडेंस होकर के वापस भी आने लगेंगे। जब ये थोड़ी देर बाद ये कंडेंस होकर वापस आने लगेंगे और सरफेस पे, और सरफेस के कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर भी जाने लगेंगे। इस पर्टिकुलर स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। और इस समय जितना ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं सरफेस के लिक्विड के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा, सरफेस के लिक्विड के ऊपर अब इक्विलिब्रियम में जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वही वेपर प्रेशर है। लेकिन अब मैंने इसमें थोड़ा सा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ये होता है जिसको उड़ने की शक्ति नहीं होती है, जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, जैसे नमक। मैंने इसमें मिला दिया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हरे रंग से दिखाया गया है, वोलाटाइल सॉल्यूट को ये थोड़ा सा बैगनी कलर से दिखाया गया है, आपको वॉयलेट कलर से दिखाया गया है। जैसे ही एनर्जी बढ़ी तो सबसे पहले ये सरफेस पे आए, अच्छी बात है। आप ये देख रहे हो कि वेपर प्रेशर एक सरफेस फिनोमेना है, यानी कि आप कहते हो वेपर प्रेशर इज द प्रेशर अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। अब जब ये सरफेस पे आए तो ये कुछ कुछ उड़ने लगे, यहाँ पे उड़ उड़ करके ये वेपराइज होकर के यहाँ पे आने लगे। लेकिन चूंकि नॉन वोलाटाइल मॉलिक्यूल्स ने कुछ सरफेस को घेर रखा है तो वो बाकी को जाने ही नहीं दे रहे। तो क्योंकि नॉन वोलाटाइल मॉलिक्यूल्स ने सरफेस को घेर रखा था तो ऊपर रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो गया, इसलिए वेपर प्रेशर कम हो गया। तो हमें समझ में आना चाहिए कि अगर वोलाटाइल सॉल्यूट है, अगर वोलाटाइल सॉल्यूट है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया गया तो वेपर प्रेशर कम होगा। अभी हम सॉल्यूट की तो बात ही ना करें, अभी हम एक प्योर सॉल्वेंट ले लें, पानी ले लें और कुछ ना करें, तो पानी का जो वेपर प्रेशर होगा वो उसका वेपर प्रेशर होगा, यानी दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब मैं इसमें कोई एक वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दूं, इस पानी में अगर मैं कोई वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दूं तो आप ये कैसे कहोगे कि, आप क्या कहोगे, प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? वोलाटाइल सॉल्यूट है, वोलाटाइल यानी जो इवेपोरेट हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पहले से वेपर प्रेशर बढ़ ही जाएगा। हो सकता है वो जो आपने सॉल्यूट डाला है उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन वाटर से ज्यादा हो, तो वाटर भी उड़ेगा और उससे तेज तो उड़ेगा सरफेस को छोड़ करके वो जो सॉल्यूट डाला है, तो वेपर प्रेशर आपका ज्यादा मिलेगा। लेकिन यहीं पर अगर आपने ऐसा सॉल्यूट डाला है जो वोलाटाइल तो है लेकिन उसका रेट ऑफ इवापोरेशन, उसकी इवापोरेट होने की टेंडेंसी, उसको गैस में बदलने की टेंडेंसी वाटर से कम है, तो भले ही वो वोलाटाइल है
लेकिन आपका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाएगा। तीसरा केस, अब आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वोलाटाइल जो वेपराइज हो ही नहीं सकता। सो नॉन वोलाटाइल solute will occupy some of the surface area and they will occupy some of the surface area, so of course the vapor pressure will decrease. So आपको ये समझ में आ गया कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वेपर प्रेशर होता क्या है। तो वेपर प्रेशर इज द प्रेशर above the surface of the liquid exerted by the surface of the liquid above its surface. So फिर से बता देता हूं, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by liquid above its surface. जो surface के ऊपर ही जो liquid के molecules pressure exert करते हैं वही उसका वेपर प्रेशर होता है। लेकिन एक चीज छूट गई बोलने में, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होनी ही चाहिए, इक्विलिब्रियम होनी ही चाहिए, छूटेगा तो गलत हो जाएगा। ये हो गया आपका वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को कौन कौन सी चीजें डिपेंड करती हैं, मैंने अभी कहा नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है, जैसा लिक्विड होगा। अगर आपने कहा कि वेपर प्रेशर ऑफ डाइथाइल ईथर इज ग्रेटर देन इथाइल अल्कोहल, अगर हम प्योर इथाइल अल्कोहल का मिलाते हैं, प्योर इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर निकालते हैं और कुछ वो निकला, अब उसमें डाइथाइल ईथर डाल दिया, तो डाइथाइल ईथर भी वोलाटाइल है लेकिन उसकी रेट ऑफ इवेपोरेशन इथाइल अल्कोहल से ज्यादा है, तो ओवरऑल वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा डाला होता जिसका वेपर प्रेशर कम होता, भले ही वो वोलाटाइल होता, तो उसका ओवरऑल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जाता। तो ये नहीं कह सकते आप कि हमेशा वोलाटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा ही, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर हमेशा और हमेशा घटेगा ही। आपने कहा टेम्परेचर, तो ये तो बट ऑब्वियस सी बात है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सो मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल एबल टू escaping टेंडेंसी विल इंक्रीज, एंड टेम्परेचर बढ़ाने से क्या वेपर प्रेशर बढ़ेगा, इसमें तो दो राय नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे रोल्स लॉ। तब तक के लिए यहीं पर हम बात को रोकते हैं। धन्यवाद।